Welcome back. Breaking news coming in top of the hour. Rouse Avenue Court has granted interim bail to former Bihar CM Rabdi Devi, Misa Bharti, Hema Yadav and Hridanayan Chaudhary in the Land for Jobs scam. They have got interim bail on 1 lakh bail bond. Earlier in the day, they were brought to the Rouse Avenue Court in Delhi after they were summoned by the court after taking cognizance of a charge sheet filed by the Enforcement Directorate. Ashish Sinha is joining us for more details on this story. Ashish, what has transpired in the Rouse Avenue Court today? It's a relief to Rabdi Devi, Misa Bharti, Hema Yadav and Hridanayan Chaudhary from Rouse Avenue Court because Rouse Avenue Court today granted them interim bail in Land for Job scheme. Today they appear before the Rouse Avenue Court. As we know that on the last date of hearing, Rouse Avenue Court had issued summons against all these persons. That means Rabdi Devi, Misa Bharti, Hema Yadav and Hridanayan Chaudhary. And compliance with that particular order, they appeared before the bench of Judge Vishal Gogne. And remember that ED had filed a 4,751 pages charge sheet in that particular case. And they have also moved a regular bail plea before the Rouse Avenue Court, in which the Rouse Avenue Court had asked Enforcement Directorate to file their response, and Rouse Avenue Court is going to take up this matter once again on 28th of February. Right, Ashish, thank you for joining us with those details. In other news now, at least 60 people have been injured after local residents set vehicles and a police station on fire and hurled stones over the demolition of an illegally built madrasa and an adjoining mosque in Haldwani. A curfew has been imposed in the city and a majority of people injured in the violence erupted after the demolition of the madrasa at Malik Ka Bagicha in city's Banpulpura area. Reportedly, police personnel and some municipal workers have been injured. And 4 accused have now been arrested. Meanwhile, the death toll has stands at 2. The DM of Nainital, Vandana Singh, has held a press conference on the violence. Let's quickly cut across. सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। UP Deputy CM KP Maurya and Union Minister Giriraj Singh have also reacted. को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। कहा जा रहा है यूसीसी को लेकर ये पूरी प्लानिंग की, मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा वो पुलिस वहाँ की कार्रवाई करेगी। Yogesh is joining us for more details on this story. Yogesh, what is the situation currently in Haldwani?
सर देखिए, बनभूलपुरा में जिस तरह का कल पूरा बवाल हुआ, कई लोगों की मौत की खबर है, लेकिन प्रशासन ने अभी 2 लोगों की मौत की पुष्टि करी है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हो, नगर निगम के कर्मचारी हो, कुछ पत्रकार भी घायल हुए। इसके अलावा बनभूलपुरा थाने के बाहर जो आग लगा दी गई थी, उसमें कई सारे वाहन जले हैं, पुलिस कर्मियों के बाइकों को आग लगा दी है पूरी तरीके से। अभी घटनास्थल पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही दूसरे जिलों से भी फोर्सेस मंगा ली गई है। जी, नैनीताल की डीएम ने भी बयान दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करी, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उसने कहा कोई धार्मिक जो है बवाल नहीं है, ये एक प्रशासन अपनी सामान्य रूप से कार्रवाई करने गया था। नजूल की भूमि पर जो अवैध मदरसा और नमाज स्थल बना था, उसको हम तोड़ने गए थे, उसके लिए पूरी प्रक्रियाएं हमने अपनाई। उसके बाद भी इन्होंने जबरदस्ती पुलिस पर पथराव किया, कार्रवाई का विरोध किया, लगातार जेसीबी के शीशे तोड़े, कई वाहनों में आगजनी कर दी, जिसके बाद हमें भी शूट एंड साइट के ऑर्डर देने पड़े। इसके अलावा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सारे हालातों पर पूरी नजर हम लोग बनाए हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी हाई पावर कमेटी की लगातार बैठक कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद डीजीपी और मुख्य सचिव भी बनभूलपुरा क्षेत्र का दौरा करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.